Good morning, children. How are you? I hope you all will be good and safe. Children, in previous 2 or 3 videos, I have explained the chapter Bills of Exchange. Children, in previous videos, I have explained the meaning of Bill of Exchange. Its meaning is a bill of exchange is an written instrument which is generally drawn by the creditors upon his debtor for credit transaction. Three parties are involved in a bill of exchange. First, drawer. Drawer is the maker of bill of exchange, creditor or seller. Second, drawee is the purchaser or debtor of the goods upon the bills of exchange drawn. Third, payee is the person to whom the payment is to be made. So, according a bill of exchange, three parties are involved: drawer, drawee, or payee. Promissory note, it is also an instrument, written instrument. Sometimes the purchaser of the goods, debtor, writes a note, sign it, and give it to the seller of the goods. Parties to a promissory note involve: first, maker or the drawee are same parties. Second, drawee, payee also are the same parties. Maturity of bill, it refers to date on which a bill of exchange promissory note becomes due for payment. In arriving at a maturity date, 3 days known as days of grace. So children, this topic already I had explained, and today I will explain a new topic, discounting of bill. So let's start. If the holder of the bill needs funds, he can approach the bank for encashment of the bill before the due date. The bank shall make the payment of the bill after deducting some interest, called in discount in this case. This process of encashing the bill with the bank is called discounting the bill. The bank gets the amount from the drawee on the due date. So children, according this, जब कोई क्रेडिटर किसी कंपनी या अपने डेप्टर को पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए कहता है कि मेरी जो पेमेंट है उसको कंप्लीट करो, पर उसकी तरफ से कोई भी पेमेंट नहीं मिलता है ऑन टाइम, तो यहाँ पर क्रेडिटर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी बैंक को ये ऑर्डर देता है और वो बिल दे करके अपनी जो पेमेंट है उसको कैश करा सकता है. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेप्टर को 90 डेज़ का टाइम देते हैं. यदि इन टाइम पर जो डेप्टर है उसने हमारी जो पेमेंट है वो बैंक को रिटर्न की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो डिले होती है तो वहाँ पर उसको कुछ चार्ज जो है वो पे करना पड़ता है एज अ इंटरेस्ट टू द बैंक. तो बैंक उस डेप्टर के अकाउंट से उस डेबिट ट्रांजैक्शंस को डिडक्ट कर लेते हैं. सो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कि जब कोई भी क्रेडिटर अपने डेप्टर से डिमांड कर रहा है अपनी पेमेंट के लिए, लेकिन जो उसका डेप्टर है वो ऑन द टाइम हैज़ नॉट पे द अमाउंट, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर जो क्रेडिटर है वो डायरेक्टली बैंक से कांटेक्ट करके उसके बिल को शो करके उसकी जो ट्रांजैक्शंस है उनको वो टेक ओवर कर सकता है. अब वहाँ पर जो क्रेडिटर है विद इन 90 डेज़ उसको वो अमाउंट जो है रिटर्न करनी है, लेकिन अगर ऐसा नहीं करता है तो बैंक उस पर एक जो है इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और उसके अगर इंटरेस्ट चार्ज भी करने के बाद भी पेमेंट नहीं होती है देन completely amount bank has deduct from his account. Next topic is endorsement of bill. Any holder may transfer a bill unless its transfer is restricted. The bill has been negotiated containing words prohibiting its transfer. The bill can be initially endorsed by the drawer by putting his signatures at the back of the bill along with the name of the party to whom it is being transferred. The act of signing and transferring the bill is called endorsement. So according this,
कि जब कोई एक डेप्टर अपनी पेमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाता है और वो अपने बिल को किसी दूसरे पर्सन को या किसी अपने दूसरे क्रेडिटर को ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसे एंडोर्समेंट ऑफ बिल कहते हैं। जैसा कि अगर कोई फर्स्ट पार्टी अपने बिल की पेमेंट के लिए उसे किसी सेकंड पार्टी या सेकंड पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है ओनली ड्रॉर, लेकिन ये तभी हो सकता है जब वहाँ पर ड्रॉर के सिग्नेचर हों उस बिल के बैक साइड में। अगर बिल के बैक साइड में ऐसे कोई सिग्नेचर नहीं है तो वहाँ पर इस तरह का कोई भी बिल किसी भी अनदर पार्टी पर या किसी भी अनदर पर्सन के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। सो अकॉर्डिंग दिस एनी होल्डर में ट्रांसफ़र अ बिल, कि कोई भी होल्डर अपने बिल को ट्रांसफ़र कर सकता है अनलेस इट्स ट्रांसफ़र इज रिस्ट्रिक्टेड। वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। द बिल हैज़ बीन नेगोशिएटेड कंटेनिंग वर्ड्स प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफ़र, कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऐसी कोई रूल्स नहीं है कि हम उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। द बिल कैन इनिशियली एंडोर्स बाय द ड्रॉर बाय पुटिंग हिज सिग्नेचर। सिर्फ वहाँ पर जो अपने बिल को ट्रांसफ़र कर रहा है उसके सिग्नेचर उसके बिल के बैक साइड में होने कंपलसरी है, और अगर उसके साइन है उसके बैक साइड में बिल के, तो वो इजीली अपने बिल को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी अपनी अदर पार्टी के नाम पर, और इसी एक प्रोसेस को हम एंडोर्समेंट कहते हैं। So children, now I have explained a numerical question. Amit sold goods for rupees 20,000 to Sumit on credit on January 1st, 2017. Amit drew a bill of exchange upon Sumit for the same amount for 3 months. Sumit accepted the bill and returned it to Amit. Sumit met his acceptance on maturity. Record the necessary journal entries under the following circumstances. तो चिल्ड्रन, सबसे पहले हमने पढ़ा कि कैसे एक क्रेडिटर अपने डेप्टर के लिए एक जो बिल है उसको प्रिपेयर करता है और किस लिए करता है। तो यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि अमित सोल्ड गुड्स, अमित ने सामान बेचा 20,000 का ऑन क्रेडिट, किसको? सुमित को। तो ये ट्रांजैक्शंस क्रेडिट है, इसलिए यहाँ पर अमित जो है सुमित को क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में 20,000 का गुड्स सोल्ड कर रहा है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, पता यहाँ पर हमें जो फर्स्ट प्रोसेसिंग है वो बता रही है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन की जा रही है। अमित ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब तुरंत अमित ने एक उसके लिए बिल जो है प्रिपेयर किया अपॉन सुमित फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ्स, और उससे पूछा कि भाई कितने टाइम में आप मेरी पेमेंट जो है वो करेंगे। तो सुमित की तरफ से रिप्लाई है कि आफ्टर 3 मंथ आई विल पे द अमाउंट, कि मुझे 3 महीने का विद इन 3 मंथ आई विल पे द अमाउंट फॉर योर ट्रांजेक्शन्स फॉर योर गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट, सुमित एक्सेप्टेड द बिल। जो अमित ने बिल प्रिपेयर किया सुमित के लिए 3 मंथ की अमाउंट के लिए, उस बिल को सुमित ने एक्सेप्ट किया एंड रिटर्न इट टू अमित। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब कोई यहाँ पर ड्रॉर, सबसे पहले हमारी पार्टी थी ड्रॉर, सेकंड पार्टी थी ड्रॉई। तो इसका मतलब ड्रॉर ने एक बिल प्रिपेयर किया, अमित इज़ द ड्रॉर, सुमित इज़ द ड्रॉई और पेई, सेम पार्टी। तो यहाँ पर अमित ने लेटर को प्रिपेयर किया, इट इज़ कॉल्ड द ड्रॉर। सुमित हैज़ एक्सेप्टेड द बिल, सो इट इज़ कॉल्ड द ड्रॉई और पेई। तो सुमित ने उस लेटर को एक्सेप्ट किया। आफ्टर दैट ही ऑल्सो राइट्स एक्सेप्टेड वर्ड ऑन द बिल। उसने एक्सेप्टेड वर्ड को भी बिल पर लिखा एंड रिटर्न इट टू अमित, और उसके बाद उसको रिटर्न कर दिया अमित को कि ओके आई विल फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑल द कंडीशंस विच यू हैव said me, which you have told me. Okay. सुमित met his acceptance on maturity, और सेम अकॉर्डिंग जो भी बिल थे, जो भी बिल में ट्रांजेक्शन्स थी, जो भी बिल में टर्म और कंडीशंस थी, अकॉर्डिंग दिस सुमित हैज़ पे ऑल हिज मनी ऑन द मेच्योरिटी डेट। तो सुमित ने अपनी तरफ से सारी जो अमाउंट है वो पे कर दी अमित को अपने जो मेच्योरिटी डेट है उसके अकॉर्डिंग। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर हमें कुछ जो है जनरल एंट्रीज को प्रिपेयर करना सीखना है कि सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट केस इज
Amit retained the bill till the date of its maturity and collected directly. Amit retained the bill till the date of its maturity and collected directly. कि यदि अमित जो है मेच्योरिटी डेट तक बिल को अपने पास रखता तो हम जनरल एंट्री कैसे प्रिपेयर करते। तो यहाँ पर अमित ने जब सुमित के लिए जो एक बिल ऑफ एक्सचेंज है प्रिपेयर किया था, सुमित ने एक्सेप्टेंस करने के बाद उसको रिटर्न कर दिया अमित को। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अमित रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ इट्स मेच्योरिटी एंड कलेक्टेड डायरेक्टली। अमित उस बिल को अपने पास ही रखता और उसके बाद जो थी मेच्योरिटी डेट पर उसके कलेक्शन होती तो उसको किस तरह से जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी पड़ती। इन हिज बुक्स ऑफ अमित व्हेन द बिल वाज रिटेन इट्स टिल इट्स मेच्योरिटी, सुमित अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट। इसका मतलब है कि सुमित को 20,000 डेबिट हुए और टू सेल्स, किससे, सेल करने से। सोल्ड गुड टू सुमित ऑन क्रेडिट। सिंपल हमें जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है जैसा हम एज यूजुअल करते हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हमें बिल मिल रहा है, बिल के अगेंस्ट में हमें जो है अमाउंट रिसीव हो रही है, दैट इज कॉल्ड द बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू सुमित अकाउंट 20,000। रिसीव सुमित's acceptance payable after 3 months. Next entry, bank account debit 20,000 to bills receivable account 20,000. Sumit met his acceptance on maturity. Second case is when the bill was discounted from the bank. If Amit 12% per annum जो है ट्रांजैक्शन पर जो बैंक से कैश करा लेता अगर अमाउंट को, तो वहाँ पर किस तरह की ट्रांजैक्शंस हमें प्रिपेयर करनी पड़ती जनरल एंट्री। कि सपोज़ यहाँ पर जो बिल अमित है वो 12% की, पीछे देखिए यहाँ पर एग्जाम लिखा है, केस क्या है, अमित डिस्काउंटेड द बिल एट रेट 12% पर एनम फ्रॉम हिज बैंक। अगर अमित डायरेक्टली इस बिल को कैश करा लेता बैंक से तो उसको 12% के चार्ज बैंक को पे करने पड़ते। सुमित अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट, फर्स्ट जनरल एंट्री आर सेम। सेकेंड बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट, सेकेंड ऑल्सो सेम, ओनली नेम इज डिफरेंट। आई होप नेम ऑल्सो सेम। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 600 का डिस्काउंट बिकॉज 20,000 इंटू 12% 6 month to bill receivable account 20,000. Third case is when Amit endorsed the bill in favor of his creditor Ankit, कि अमित अपना जो बिल है वो ट्रांसफ़र कर देता अगर अपने किसी एक और क्रेडिटर अंकित को, तो हम जनरल एंट्री कैसे प्रिपेयर करते। फर्स्ट सुमित अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट, sold goods to Sumit on credit. Second, bill receivable account debit 20,000 to Sumit account 20,000. Receive Sumit acceptance for 3 months. अंकित अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ पर अंकित को रिसीव होगा, अंकित वहाँ पर फिर पास करेगा सुमित को और सुमित से फिर हमें बिल रिसीवेबल होंगे और बिल रिसीवेबल होने के बाद वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे सुमित के अकाउंट में। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस है वो पास हो रही है कि जो फर्स्ट क्रेडिटर था उसने अपनी ट्रांजैक्शंस किसी दूसरे एंडोर्स को कर दिया, किसी अपने दूसरे क्रेडिटर को ट्रांसफ़र किया और अब वो उसकी जो है पेमेंट कर रहा है। अंकित अकाउंट डेबिट 20,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, सुमित एक्सेप्टेंस एंडोर्स इन फेवर ऑफ अंकित। नेक्स्ट केस इज when the bill was sent for collection by अमित to the bank। अगर यहाँ पर जो बिल है उसको कलेक्ट करने के लिए अमित की तरफ से बैंक में जो है इंफॉर्मेशन मिलती। हम सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू सुमित अकाउंट, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 20,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन कलेक्टेड बाय द बैंक। की जो बिल है उसका कलेक्शन किसकी तरफ से किया गया, बैंक की तरफ से कलेक्ट किया गया है। द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ सुमित अंडर ऑल द सर्कमस्टांसिस, कि यहाँ पर अलग अलग केस के अकॉर्डिंग हमें जो है डिफरेंट टाइप्स की जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर करना होगा। Children, one more question I have explained. X sold goods to Y.
X sold goods to Y for 10,000 on 15th March 2017. On the same day, Y accepted a bill drawn upon him by X at 4 months for 10,000. X discounted the bill on 15th April 2017 at 18% per annum at his bank, and Y met the bill on maturity. So according this question, X sold goods to Y 10,000 on credit on 15th March 2017. On same day, X has written a bill and Y accepted this bill for 4 months. So Y has given a promise to X, okay, I will pay your 10,000 rupees after 4 months at the maturity time. X discounted the bill. X also has given the discount on Y 18% per annum. So Y has given whole the amount on his maturity on his due date. So according this, we will prepare the journal entry for both the parties book. First, जनरल ऑफ एक्स. एक्स कैसे अपनी अकाउंट्स में प्रिपेयर करेंगे? जनरल एंट्री टू वाई अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल अकाउंट, कि वाई के डेबिट हुआ और सेल हमारी जो सेल है वो माइनस हुई. गुड्स सोल्ड टू वाई. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. अब हमें बिल रिसीव होगा 10,000 का, किससे? टू वाई से. एक्सेप्टेंस रिसीव, हमें ऑलरेडी वहाँ पर जो है एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, किसकी साइड से? वाई की. नेक्स्ट जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 9,550, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 450, to bills receivable account 10,000. So according the bill of exchange, X has given 18% per annum discount on the Y bill. तो यहाँ पर जो X है उसने 18% का डिस्काउंट दिया है, किसे? अपने Y डेप्टर को. 10,000 इंटू 18/100 इंटू 3/12 450 to bill receivable account. Note, X will not pass any entry on 18th July, the due date of bill, because he has already received cash at the time of discounting the bill. So children, according the note, X will not pass any entry. X कोई भी एंट्री अपनी बुक्स में पास नहीं करेगा ऑन 18th जुलाई, 18 जुलाई को, क्योंकि उसको जो पेमेंट थी वो सेम टाइम पर, या जो उसकी एक डेट थी, पर्टिकुलर डेट थी, उस डेट पर उसको पूरा जो पैसा है वो रिसीव हो चुका है. जनरल ऑफ वाई. वाई प्रिपेयर ऑन हिज बुक्स परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू एक्स. अब यहाँ पर वाई बता रहा है कि मैंने सामान खरीदा 10,000 का, किससे? एक्स से. गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स. नेक्स्ट, एक्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट. जो बिल पे करेगा, जिसको पेमेंट करनी होती है, उसे हम बिल, जो अमाउंट पे करता है उसे बिल पेबल कहते हैं, और जो अमाउंट को रिसीव करता है दैट इज़ कॉल्ड द बिल रिसीवेबल अकाउंट. तो यहाँ पर पेमेंट हो रही है वाई की तरफ से, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट. एक्सेप्टेंस गिवन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू bank account, the amount of bill paid on due date. So children, according this, today I had explained one more numerical question, and also all the theoretical notes revised. So children, mostly this chapter has completed. After this I will continue a new chapter. So take care. Goodbye.